Now today we will continue with the modes of execution of a decree and just refer to rule 32 of order 21. It says decree for specific performance for restitution of conjugal rights or for an injunction. Alright. So rule 32 is important. It is not concept based, but it is primarily awareness based. You just have to just understand one more thing, that as far as injunction is concerned, both mandatory and prohibitory injunctions are covered within its purview. Alright? Both mandatory and prohibitory injunctions are covered within its purview. So let us see what Rule 32 has to say. It says where the party against whom a decree for specific performance of a contract or for restitution of conjugal rights or for an injunction. So there are three things: specific performance of the contract, restitution of conjugal rights, or an injunction has been passed, has had an opportunity of obeying the decree. पहली कंडीशन क्या है कि उसके पास opportunity होनी चाहिए डिक्री को obey करने के लिए, and he has willfully जानबूझ के failed to obey it. The decree may be enforced in case of a in case for a decree of restitution of conjugal rights by attachment of his property, or in case of decree of specific performance of a contract or for an injunction by his detention in civil prison, or by attachment of his property, or by both. तो restitution of conjugal rights में क्या remedy है? Only attachment of the property. However, in case of specific performance of the contract or for an injunction, the remedy available is detention in civil prison of the judgment debtor and attachment of his property, or both, दोनों एक साथ. Sub rule 2 says where the party against whom a decree for specific performance or for an injunction has been passed is a corporation, वो company है. The decree may be enforced by attachment of the property of the corporation or with the leave of the court by detention in civil prison of directors or other principal officers thereof, और बोथ बाय अटैचमेंट एंड डिटेंशन. अब देखिए ऑब्वियसली कोर्ट कंपनी को जेल नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं या प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं उनको ज़रूर डिटेंशन में डाल सकता है. सो उनके केस में अटैचमेंट और डिटेंशन दोनों रेमेडीज अवेलेबल हैं. लेकिन जब सिर्फ कॉपरेशन की बात हो, ठीक है, जब सिर्फ कॉपरेशन की बात हो तो कॉपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ही एक रेमेडी रह जाती है. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू परस्यू अगेंस्ट its directors and principals officer of the corporation concerned. In that case, you can also have the remedy of civil prison and attachment and detention of the principal officers concerned. ठीक है, attachment of the property and detention of the persons of directors and principal officers. Now we come to sub rule 3. It says where an attachment under sub rule 1 or sub rule 2 has remained enforced for 6 months, mark this period. If judgment debtor has not obeyed the decree and decree holder has applied to have the attached property sold, such property may be sold, and out of proceeds the court may award the decree holder such compensation as it thinks fit, and shall pay the balance, if any, to the judgment debtor on his application. ठीक है, दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जजमेंट डेप्टर ने डिक्री ओबे नहीं की है, 6 मंथ्स हो गए अटैचमेंट के, सो द डिक्री होल्डर कैन अप्लाई टू हैव द अटैच प्रॉपर्टी सोल्ड. ठीक है, कोर्ट फिर कहेगा कि भाई इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और जितनी भी कंपनसेशन डिक्री होल्डर इज इंटाइटल टू वो उनको देते हैं, एंड द बैलेंस शैल बी पेड टू द जजमेंट डेप्टर आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द सेल एंड एग्जीक्यूटिंग द सेल. वो भी कॉस्ट डिडक्ट होते हैं. सब रूल 4 पे आते हैं. वो कहता है कि वेयर द जजमेंट डेप्टर हैज ओबेड द डिक्री एंड पेड ऑल कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द सेम विच इज बाउंड टू पे, और वेयर एट द एंड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट no application to have the property sold has been made, or if made has been refused, the attachment shall cease. Now yesterday we read a similar provision in context of movable property जो ऑर्डर 21 के रूल 31 में था. यहाँ पे भी हमें सिमिलर ही प्रोविजन मिलता है. हाउएवर द डिफरेंस इज वहाँ पे अटैचमेंट 3 मंथ्स का था, यहाँ पे अटैचमेंट की लिमिट कितनी है, 6 मंथ्स की. ठीक है, अब सब रूल 5 पे आते हैं. सब रूल 5 says where a decree for specific performance of the contract or for an injunction has not been obeyed, the court may, in lieu of
or in addition to all or any of the process aforesaid, direct the act required to be done and may be done so far as practicable by a decree holder or some other person appointed by court at the cost of judgment debtor, and upon the act being done the expenses incurred may be ascertained in such a manner as the court may direct and may be recovered as if they were included in the decree. Explanation: for the removal of doubts, it is hereby declared that the expression the act required to be done covers prohibitory as well as mandatory injunction. रूल सब रूल 5 किस चीज़ की बात कर रहा है? सब रूल 5 इस सिचुएशन की बात कर रहा है कि जहाँ पे द जजमेंट डेप्टर हैज़ टू परफॉर्म एन एक्ट, ठीक है, और वो कह रहा है कि आप मेरे खिलाफ कुछ भी कर लीजिए, मुझको जेल में डाल दीजिए, मेरी प्रॉपर्टी सेल कर दीजिए, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट परफॉर्म दैट एक्ट, लेट अस अज्यूम ही इज ऑब्स्टिनेट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सब रूल 5 है वो रेमेडी है। सब रूल 5 जो अप्लाई करता है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इंजंक्शन के मैटर्स पे अप्लाई करता है व्हेन द डिक्रीज फॉर आइदर ऑफ द टू। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पे ये मैटर नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कोर्ट के पास ऑप्शन है कि आइदर इन ऑल्टरनेटिव और इन एडिशन टू ऑल द अदर प्रोसेसेस जो अभी आपको समझाया गया है, अटैचमेंट, अरेस्ट, डिटेंशन एक्सेट्रा, उनके ही एडिशन में कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट ये कह सकता है कि डिक्री होल्डर वो एक्ट परफॉर्म कर दे या कोई और पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द डिक्री होल्डर और ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्ट परफॉर्म्स दैट एक्ट, और जो भी उसके कॉस्ट होंगे वो जजमेंट डेप्टर से रिकवर किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए कॉस्ट और एक्सपेंसेस रिकवर करना आसान होता है, बट जहाँ पे कोई ऐसा काम है जो जजमेंट डेप्टर को खुद करना चाहिए वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मान लीजिए अगर जजमेंट डेप्टर ऑब्स्टिनेट हो जाए, कहता है नहीं करूँगा, जो भी करना है कर लीजिए आप, तब आप क्या करोगे? तब दिक्कत हो जाती है। वो कहता है कि मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं तब भी नहीं करूँगा, मेरी प्रॉपर्टी अटैच करके सेल कर दीजिए, मैं तब भी नहीं करूँगा। तब क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो डिक्री होल्डर से बोल देगा ओके यू परफॉर्म दैट एक्ट, वी विल रिकवर द कॉस्ट्स, ठीक है। या किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगा जो वो एक्ट परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। या तो डिक्री होल्डर ही स्पॉन्सर कर देगा कोर्ट के सामने कि देखिए ये पर्सन है, ये एक्ट परफॉर्म कर सकते हैं, देन प्लीज अपॉइंट दैट पर्सन टू परफॉर्म दैट एक्ट, और इसके जितने भी एक्सपेंसेस या खर्चा होगा ये जजमेंट डेप्टर से रिकवर किया जाएगा, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन देख लीजिए। इलस्ट्रेशन कहता है a person of little substance erects a building which renders uninhabitable a family mansion belonging to B. A, in spite of his detention in prison and attachment of his property, declines to obey a decree obtained against him by B and directing him to remove the building. The court is of the opinion that no sum realizable by the sale of A's property would adequately compensate B for the depreciation in the value of his mansion. B may apply to the court to remove the building and may recover the cost of such removal from A in execution proceedings. ये सब रूल 5 का इलस्ट्रेशन है। अब रूल 33 पे आ जाइए जो स्पेसिफिकली रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से डील करता है, ठीक है। ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 32, मतलब ये ओवर राइट कर रहा है रूल 32 को, द कोर्ट आइदर एट द टाइम ऑफ पासिंग अ डिक्री अगेंस्ट अ हस्बैंड, इसमें वाइफ नहीं इंक्लूडेड है, against a husband for the restitution of conjugal rights or any time afterwards, may order the decree shall be executed in the manner provided in this rule. Subrule 2 says where the court has made an order under Subrule 1, it may order that in event of decree not being obeyed within such period as may be fixed in this behalf, the judgment debtor shall make to the decree holder such periodical payments as may be just. Periodical payments का order दे सकता है, and if it thinks fit require that the judgment debtor shall to its satisfaction secure to the decree holder such periodical payments, या और साथ ही साथ उन periodical payments की security भी देगा, ठीक है। Sub rule 3 says the court may from time to time vary or modify any order made under sub rule 2 for periodical payment of money either by altering the times of payment or by increasing or diminishing the amount, or may the same as to whole or any part of the money so ordered to be paid, and again review the same either wholly or in part as may be just. तो बेसिकली सब रूल 3 ये बता रहा है कि जो कोर्ट है वो जो भी पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ मनी का जो अमाउंट ऑर्डर कर रहा है उसका टर्म फिक्स कर सकता है, उस अमाउंट को वेरी या मॉडिफाई कर सकता है, वो बढ़ा सकता है,
उस पीरियोडिकल पेमेंट के सम को वो घटा सकता है उस पीरियोडिकल पेमेंट के सम को। अब जो पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ सम है ना, इट इज मोर और लेस मेंटेनेंस, बट इट इज नॉट जस्ट दैट, ये उससे वाइडर है। Sub rule 4 says any money ordered to be paid under this rule may be recovered as though it were payable under a decree for payment of money. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, एनी मनी ऑर्डर टू बी पेड अंडर दिस रूल में बी रिकवरेबल एज दो इट वर पेबल अंडर अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, जरा रूल 30 पे जाइए, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी कैसे रिकवर की जाती है। वो कहती है कि इट में बी रिकवर्ड, जो भी रिलीफ ऑब्टेन की जा सकती है बाय द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बाय डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेप्टर। इसका मतलब हस्बैंड कैन बी अरेस्टेड एंड डिटेन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सच पीरियोडिकल सम। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, रूल 33 वाइफ पे नहीं अप्लाई होता है, ये सिर्फ हस्बैंड पे ही अप्लाई होता है। नाउ रूल 34 इज माय फेवरेट, ये मेरा फेवरेट क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन का रूल है, क्योंकि ये अक्सर होता है, ये अक्सर लोग पूछते भी हैं। ये बताता है डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और एंडोर्समेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता था कि मतलब जो लोग नहीं जानते थे वो लोग पूछते थे कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन है, ही रेफ्यूजेस टू एग्जीक्यूट अ डॉक्यूमेंट, ही रेफ्यूजेस टू साइन इट है, और उसके खिलाफ डिक्री पास हो गई, क्योंकि भाई साइन तो वो अपने हाथ से ही करेगा, थंब इंप्रेशन तो अपने हाथ से ही लगाएगा। वो कहता है मैं नहीं करूँगा, आप मुझे जेल में डाल दो, आप मुझे कन्फाइन कर दो, आप मेरी प्रॉपर्टी सेल कर दो, मैं नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। तब कोर्ट क्या करेगा, क्या कोर्ट हेल्पलेस है? कोर्ट इज ऑब्वियसली नॉट हेल्पलेस। रूल 34 देखिए क्या कहता है, where a decree is for execution of a document, document is the word of the widest purport, or for the endorsement of a negotiable instrument, and the judgment debtor neglects or refuses to obey the decree, the decree holder may prepare a draft for the document or endorsement in accordance with the terms of decree and deliver the same to the court. The court shall thereupon cause the draft to be served to the judgment debtor together with a notice requiring his objections, if any, to be made within such time as the court fixes in this behalf. ये इसकी जो नोटिस देता है कोर्ट जजमेंट डेप्टर को कि ये देखना कि ये ड्राफ्ट बिल्कुल वैसा ही है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डिक्री होल्डर ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं जो डिक्री के परव्यू से बाहर हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन है जो जजमेंट डेप्टर को लेना है तो अभी ले ले। Sub rule 3 says where the judgment debtor objects to draft, his objection shall be stated in writing within such time, and the court may make such order approving or altering the draft as it thinks fit. अगर ऑब्जेक्शंस अपहोल्ड हो जाते हैं तो ड्राफ्ट ऑल्टर होगा, अगर ऑब्जेक्शंस रिजेक्ट हो जाते हैं तो क्या होगा, द कोर्ट शैल अप्रूव द ड्राफ्ट। सब रूल 4 says the decree holder shall deliver to the court a copy of the draft with such alterations, if any, as the court may have directed upon the proper stamp paper, if a stamp is required by law for the time being in force, and the judge or such officer as may be appointed on this behalf shall execute the document so delivered. The execution of a document or endorsement in negotiable instrument under this rule may be in the following form, namely CD जज, ये फॉर्म अपना आप देख लीजिएगा, इसको रीड करना would be a futile exercise, you can read it yourself. And shall have the same effect as the execution of a document or endorsement of the negotiable instrument by the party ordered to execute or endorse the same. This is important. ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि एक बार जज ने उसे इनिशियल कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ दैट पार्टी, तो अफेक्ट ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि जजमेंट डेप्टर ने ही उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया होता। Either that matter is for execution of any document or for endorsement on a negotiable instrument. That is a very very wide power that the judges possess. आप खुद सोचिए, जजमेंट डेप्टर अगर कह रहा है मैं नहीं करूंगा एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट, मान लीजिए अंडर अ डिक्री ही हैज टू एग्जीक्यूट अ सेल डीड, ही सेज आई वोंट डू सो, जज बोलेगा आप नहीं करेंगे, तो डिक्री होल्डर क्या करेगा, वो ड्राफ्ट दे देगा, ड्राफ्ट मान लीजिए सेम सेल डेट का है, जज एक फाइनल ऑप्शन देता है, वुड यू एग्जीक्यूट इट और नॉट, कहते हैं नहीं नहीं एग्जीक्यूट करूँगा, तो जज क्या कहेगा, ओके आई एम एक्सरसाइजिंग माई पावर अंडर ऑर्डर 21 रूल 34, मैं आपके बिहाफ पे साइन किया कर दूंगा। तो फिर लॉ में ऐसा ही इफेक्ट होगा जैसे कि उसने खुद ही एग्जीक्यूट कर दिया होता। ठीक है, देखिए क्या टर्म्स यूज करता है लॉ, shall have the same effect as execution of a document or endorsement of a negotiable instrument by the party ordered to execute or endorse the same. Rule 6 says where the registration of a document
is required under law for the time being in force, the court or such officer of the court as may be authorized in that behalf by the court shall cause the document to be registered in accordance with law. जहाँ पर registration जरूरी है वहाँ पर registration होगा. Where the registration of the document is not so required, but the decree holder desires to be registered, the court shall make such order as it thinks fit. Where the court makes the order for registration of any document, it may make such order as it thinks fit regarding the expenses of registration. अब expenses of registration का भी option court के पास है कि वो कहे कौन सी पार्टी bear करेगी. That is up to the court. और वो ये अपना discretion, क्योंकि judicial discretion है और judicial discretion is always exercised ex debito justitiae in the interest of justice. ठीक है. रूल 35 36 हम कल ही कर चुके थे. अब जरा आ जाते हैं अरेस्ट और डिटेंशन पे. ठीक है. अरेस्ट और डिटेंशन को जरा हम प्रॉपरली डील करते हैं. तो वापस जरा कुछ सेक्शंस पे चलते हैं सीपीसी के. अब आपको याद होगा कि रूल 51 में हम लोग ने प्रोवाइजो पूरा पढ़ा था विच टॉक्ड अबाउट कि जब डिक्री पेमेंट ऑफ मनी के लिए है तो डिटेंशन इन द प्रिजन कब ऑर्डर किया जाएगा और कब ऑर्डर नहीं किया जाएगा और उसके क्या पैरामीटर है. उनको ध्यान में रखते हुए हम अरेस्ट और डिटेंशन पढ़ते हैं. ठीक है. सेक्शन 55 पे आइए. सेक्शन 55 कहता है जजमेंट डेटर में बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एट एनी आवर एंड ऑन एनी डे, किसी भी घंटे किसी भी दिन, एंड शैल एज सून एज प्रैक्टिकेबल बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट and his detention may be in civil prison of the district in which the court ordering the detention is situated, or where such civil prison does not afford suitable accommodation in any other place in which the state government may appoint for detention of the person ordered by the courts of such district to be detained, provided that firstly that for the purpose of making an arrest under this section no dwelling house shall be entered after sunset or before sunrise. मतलब रात को आप किसी के भी घर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्ट नहीं जाएंगे अगर वो सिविल मैटर से डील करता है, सिविल प्रोसीजर कोड से डील करता है. Provided that secondly no outer door of the dwelling house shall be broken open unless shall dwelling house is in the occupancy of the judgment debtor and he refuses or in any way prevents the access thereto. But when the officer authorized to make the arrest has duly gained access to any dwelling house, he may break open the door of any room in which he has reason to believe that the judgment debtor is to be so found. Provided thirdly that if the room is in occupancy of Parda Nashin woman, the officer authorized to make arrest shall give her the liberty to withdraw, and after allowing reasonable time for her to withdraw, he may then enter the room for the purpose of making arrest. Provided fourthly, where the decrees for execution of which the judgment debtor is arrested is a decree for payment of money, and the judgment debtor pays the amount of the decree and the cost of the arrest to the officer arresting him, such officer shall release him at once. Mark this. Sub-rule 2 says, the state government may by notification in official gazette declare that any person or class of persons whose arrest might be attended with danger or inconvenience to the public shall not be liable to arrest in execution of the decree otherwise than in accordance with such procedure as may be prescribed by the state government in this behalf. Subsection 3 says, where the judgment debtor is arrested in execution of the decree of payment of money and brought before the court shall inform him that he may apply to be declared an insolvent. Mark this. And he may be discharged if he has not committed any act of bad faith regarding the subject of the application and if he complies with the provision of law of insolvency for the time being in force. Sub-rule 4 says, where the judgment debtor expresses his intention to apply to be declared an insolvent and furnishes security to the satisfaction of the court that he will within 1 month so apply, mark the period 1 month, and he will appear when called upon in any proceeding upon the application or upon the decree in execution of which he was arrested, the court may release him from arrest, and if he fails to apply and to appear, the court may either direct security to be realized or commit him to civil prison in execution of decree. अब देखिए ये जो रूल्स है ना अरेस्ट और डिटेंशन के बड़े इंपॉर्टेंट हैं. अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट को लेके आपने एक पॉइंट पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि जो लोग डेंजरस हैं या पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन जिनकी जो जहाँ पे डेंजर एंड इनकन्वीनियंस होगा पब्लिक को, तो दे शैल बी नॉट बी लायबल टू अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे. अब सीपीसी बता रही है कि कुछ लोग अरेस्ट नहीं हो सकते. ठीक है. जैसे कि A woman cannot be arrested in execution of a decree for money. ये आपको सेक्शन 56 बताएगा. उसके बाद आपको पता होना चाहिए
कि जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं while going to presiding in or returning from their courts are not subject to arrest. Similarly, the parties, their pleaders, muktars, agents and recognized agents and their witness acting in obedience to summons while going to or attending or returning from court are not liable to arrest. ये दोनों ही आपको सेक्शन 135 में मिल जाएगा सीपीसी के. वैसे ही मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आर नॉट लायबल टू अरेस्ट. ये आपको सेक्शन 135 ए में मिलेगा. ठीक है, तो एक बार 135 ए देख लीजिएगा. ऐसा नहीं है कि उनको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है. लेजिस्लेटिव सेशन के पीरियड के दौरान ही उन्हें इम्यूनिटी होती है फ्रॉम सिविल अरेस्ट. क्रिमिनल अरेस्ट नहीं, सिविल अरेस्ट. और उसमें भी एक स्पेसिफिक पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है जो कि 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर है सच मीटिंग, सिटिंग और कॉन्फ्रेंस. एक बार देख लीजिएगा उसको. ठीक है, उसके बाद एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स वाला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया, जो स्टेट गवर्नमेंट खुद ही बताए मे बी अटेंडेड विद डेंजर और इनकन्वीनियंस. ये हमने आपके सेक्शन 55 में पढ़ लिया. और लास्टली अ जजमेंट डेप्टर वेयर डिक्रीटल अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹2000 ही ऑल्सो कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू एन अरेस्ट. ये आपको सेक्शन 58 के सबसेक्शन 1 में मिल जाएगा. लिखा है वहाँ पे, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट नो डिटेंशन of the judgment debtor in civil prison in execution of a decree for payment of money shall be made where the total amount of decree does not exceed ₹2000. तो ये लोग क्या कहते हैं, जितने भी लोगों को अभी मैंने मेंशन किया दे कैन नॉट बी डिटेन्ड. इनको डिटेन नहीं किया जा सकता. अगर मान लीजिए डिक्रीटल अमाउंट 2000 रुपये के अंदर है, एक्सीड नहीं करता 2000 रुपये को, इट डजंट एक्सीड, और ऐसा व्यक्ति मान लीजिए अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लाया गया, तो उसका डिटेंशन ऑर्डर नहीं हो सकता. क्योंकि देखिए जो आपका सेक्शन 58 है वो बताएगा कि एवरी पर्सन डिटेन्ड इन सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल बी सो डिटेन व्हेन द डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ अ सम एक्सीडिंग ₹5000 फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months and with a decrease for payment of sum exceeding ₹2000 but not exceeding ₹5000 for a period not exceeding 6 weeks. तो आपको पोजीशन ऑफ लॉ सीधे पता चल जाती है कि जो भी 2000 रुपए के अंदर का डिक्रीटल अमाउंट है, कि मतलब डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी, लेट अस सपोज फॉर एग्जैक्टली ₹2000. टर्मिनोलॉजी यूज है अमाउंट ऑफ डिक्री डज नॉट एक्सीड ₹2000, मतलब 2000 रुपए के ऊपर होना चाहिए, 2001 रुपए होना चाहिए. अगर 2001 रुपए नहीं है, सिर्फ एग्जैक्टली 2000 है, उससे नीचे है, तो क्या होगा, ही वोंट बी लायबल फॉर डिटेंशन इन सिविल प्रिजन. ठीक है. अब एक चीज याद रखिए कि जब भी डिक्री होल्डर ये अरेस्ट एंड डिटेंशन की रेमेडी मांगता है तो उसे सबसिस्टेंस अलाउंस डिपॉजिट करनी पड़ती है. ठीक है. अब सेक्शन 57 में सबसिस्टेंस अलाउंस की बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट स्केल फिक्स करती है अकॉर्डिंग टू रैंक, रेस एंड नेशनैलिटी ऑफ द मंथली अलाउंस पेबल टू द सबसिस्टेंस ऑफ जजमेंट डेप्टर. ऑर्डर 21 का रूल 39 देखिएगा, वहाँ पे सबसिस्टेंस अलाउंस का प्रोसीजरल लॉ दिया हुआ है. वो बताता है कि नो जजमेंट डेप्टर शैल बी अरेस्टेड in execution of a decree unless and until the decree holder pays into court such sum as the judge thinks fit sufficient for the subsistence of judgment debtor from time of his arrest until he can be brought before the court. Where the judgment debtor is committed to civil prison in execution of the decree, the court shall fix assistance such monthly allowance as may be entitled according to scales that are fixed under section 57. और अगर scales नहीं fix है, so as the court considers sufficient with reference to the class to which he belongs. फिर the monthly allowance fixed by the court shall be supplied by the party on whose application the judgment debtor has been arrested by monthly payments in advance before the first day of each month. मतलब आपको मंथली पेमेंट एडवांस में देनी होगी. ठीक है. और हर मंथ की पहले दिन से पहली तारीख से पहले देना होगा. उसके बाद रूल 39 बताता है कि द फर्स्ट पेमेंट शैल बी मेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट फॉर सच पोर्शन ऑफ द करंट मंथ एज रिमेन्स अनएक्सपायर्ड बिफोर द जजमेंट डेप्टर is committed to civil prison, and the subsequent payments if any shall be made to the officer in charge of civil prison. उसके बाद कहता है रूल 39 of order 21, sums disbursed by the decree holder for the subsistence of judgment debtor in civil prison shall be deemed to be cost in the suit. This is very important. ये cost माना जाएगा. ठीक है. shall be deemed to be cost in the suit and they are recoverable provided that the judgment debtor shall not be detained in civil prison or arrested on account of any sum so disbursed. अब उस कॉस्ट के लिए उसे
फिर से क्या कहते हैं अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये कॉस्ट कैसे रिकवर किए जाएंगे? बाय अटैचिंग एंड सेलिंग इज प्रॉपर्टी एज द केस में बी। ठीक है, इसके लिए उसे अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जा सकता फॉर द रिकवरी ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा सब्सिस्टेंस अलाउंस जो होती हैं जो डिक्री होल्डर पे करता है, दैट वुड बी डीम्ड टू बी कॉस्ट इन द सूट्स। ठीक है, अब देखिए जो आपका रूल 37 है और 38 है एक्सेट्रा है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपका प्रोसीजरल लॉ है रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन। आपका 37, 38, 39, 40, ठीक है, ये आपका प्रोसीजरल लॉ है विद रिगार्ड्स टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको कि सिविल कोर्ट्स को ये पावर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन मैकेनिकली नहीं एक्सरसाइज करनी चाहिए। दे हैव टू कीप इन माइंड द हाई वैल्यूज इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 21 रेड विद आर्टिकल 14 एंड 19। तो जो भी अगर जजमेंट डेप्टर है जो जेन्युइनली अपनी डेप्ट इसलिए नहीं पे कर सकता बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग और ही हैज़ नो मनी, उसको ज़बरदस्ती अरेस्ट और डिटेंशन में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, अगर ही जेन्युइनली डज नॉट हैव एनी मनी एंड ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी एक्ट ऑफ बैड फेथ। तो रूल 37 को देखिए, वो कहता है कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस रूल, जब डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी और रिलीफ मांगी गई है अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेप्टर इन सिविल प्रिजन, तो कोर्ट शैल इंस्टेड ऑफ इशूइंग वारंट पहले उसे एक नोटिस देगा to appear before the court on the day specified in the notice and show cause why he should not be committed to civil prison, provided such notice shall not be necessary if the court is satisfied by affidavit or otherwise that with the object or effect of delaying the execution of the decree, the judgment debtor is likely to abscond or leave the local limits of jurisdiction of the court। तो ये तो एक तरीके से सेविंग क्लॉज है कि उन एक्सेप्शनल सिचुएशंस को छोड़ने के लिए, तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो एक्सेप्शंस पे ही अप्लाई करेंगे। प्रोवाइजो को हमेशा उसके लिमिटेड कंटेक्स्ट में ध्यान रख के देखना चाहिए। अब इसके जो प्रीवियस का जो रूल है जो कहता है कि कोर्ट शैल इंस्टेड ऑफ इशूइंग वारंट इशू नोटिस, ये जनरल रूल है। ठीक है, सो अनलेस योर केस फॉल्स इनटू द प्रोवाइजो, द कोर्ट शुडंट डायरेक्टली सेंड द वारंट, rather it should first issue a notice calling upon him to appear and explain why he should not be committed to civil prison। अगर अपीयरेंस उस नोटिस के अकॉर्डेंस में नहीं हुआ तो आप जानते हैं कोर्ट क्या करेगा, ऑफ कोर्स वारंट इज द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस तब। अब रूल 38 बताता है कि हर वारंट यही डायरेक्ट करेगा विद टू द ऑफिसर इंटरेस्टेड विद एग्जीक्यूशन टू ब्रिंग द जजमेंट डेप्टर before the court with all convenient speed unless the amount, costs and the interest if any that has been mentioned in the decree are paid। ठीक है, अब रूल 40 पे आ जाते हैं। अब रूल 40 आपको बताता है कि जब जजमेंट डेप्टर अपीयर कर जाता है देन द कोर्ट शैल हियर द डिक्री होल्डर एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम इन सपोर्ट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन एंड शैल गिव द जजमेंट डेप्टर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज दैट व्हाई ही शुड नॉट बी कमिटेड टू सिविल प्रिजन। मतलब अब हेयरिंग हो रही है। ठीक है, अब डिक्री होल्डर बताएगा कि भाई ही वांट्स टू डिले और ऑब्स्ट्रक्ट द डिक्री एसेट्रा एसेट्रा, जजमेंट डेप्टर कहेगा कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है एसेट्रा एसेट्रा। फिर दोनों अपने एविडेंस लीड करेंगे और दोनों अपने ग्राउंड्स एलेज करेंगे। फिर सब रूल 2 says pending the conclusion of inquiry court may in its discretion order the judgment debtor to be detained in the custody of an officer of the court or to release him on his furnishing a security to the satisfaction of the court for his appearance when required। अब देखिए यहाँ पे जनरली सिक्योरिटी ली जाती है, डिटेंशन नहीं ऑर्डर किया जाता जनरली। ठीक है, अनलेस वेरी स्ट्रॉन्ग केस और वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स आर प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट दैट ऐसे केस में इनका डिटेंशन ऑर्डर करना चाहिए, तो यूजुअली सिक्योरिटी ली जाती है। सब रूल 3 says upon conclusion of an inquiry under sub rule 1 the court may subject to provision of section 51 and other provisions of CPC make an order for detention of the judgment debtor in civil prison and shall in that event cause him to be arrested if he is not already under arrest, provided that in order to give the judgment debtor an opportunity of satisfying the decree the court may before making an order of detention leave the judgment debtor in custody of an officer of the court for a specified period not exceeding 15 days, mark the period 15 days, or release him on his furnishing security to the satisfaction of the court for his appearance at the expiration of the specified period if the decree is not sooner satisfied। A judgment debtor released under this rule may be rearrested when the court does not make an order
of detention under sub rule 3, it shall disallow the application and if the judgment debtor is under arrest, direct his release. अब इस पे एक लोकस क्लासिकस है. उस केस का नाम है Jolly George Verghese and another versus Bank of Cochin, decided on 4th February 1980. This is a judgment given by Justice Krishna Iyer, and it is a locus classicus on the point of civil arrests. ठीक है. अब इस केस में क्या हुआ था? In this case, the appellant Jolly George Verghese were the judgment debtors. ठीक है, इनके साथ एक और भी थे. ये दोनों judgment debtors थे. दोनों appellants were the judgment debtors, while the respondent bank, that was Bank of Cochin, was the decree holder. In execution of the decree, a warrant for arrest and detention in civil prison was issued to the appellants under Section 51 and Order 21, Rule 37 of the CPC. On an earlier occasion, there had been a similar warrant for arrest and execution of the same decree. The decree holder also proceeded against the properties of the judgment debtors, and in consequence, all their immovable properties had been attached for the purpose of sale in discharge of डिक्री डेब्ट्स. इनकी जितनी भी मूवल प्रॉपर्टीज थी वो ऑलरेडी अटैच की जा चुकी थी. एक रिसीवर भी अपॉइंट किया जा चुका था बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज अंडर अटैचमेंट. Even so, the courts had issued warrant for arrest of judgment debtors because on an earlier occasion a similar warrant had already been issued without any investigation as regards to the current ability of the judgment debtors to clear of debts or their malified refusal, if any, to discharge debts. अब सवाल ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि whether under such circumstances personal freedom of judgment debtors can held to be at ransom until the payment of the debt. So what did the Supreme Court held? Supreme Court held that the words in section 51 which are or has since the date of decree has means to pay the amount of the decree, इस पे फोकस किया उन्होंने सेक्शन 51 में. Superficially read, the Supreme Court said that superficially read, this implies that if at any time after passing of an old decree the judgment debtor has come by some resources and has not discharged the decree, he could be detained in prison even though at the later point of time he was found to be penniless. मतलब बेसिक एसेंस क्या है सेक्शन 51 का कि उसके पास अगर मींस है और वो मींस होने के बाद भी ही डजंट डिस्चार्ज हिज डिक्रेटल डेप्ट, तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन प्रोसीड अगेंस्ट हिम, है ना. लेकिन सुप्रीम कोर्ट फर्दर एलैबोरेटेड. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट mere inability to discharge the decretal debts is not the main essence of section 51. Mere inability to discharge your debts is not the main essence of section 51 या arrest and detention जो भी CPC में जितने भी provision है इसके. For that purpose, Supreme Court referred to Article 11 of International Covenant on Civil and Political Rights and Article 21 of the Constitution of India. Supreme Court said that a simple default to discharge is not enough. There must be some element of bad faith beyond mere indifference to pay. Some deliberate or recusant disposition in the past, or alternatively current means to pay the decree or substantial part of it. The provision emphasizes the need to establish not mere omission to pay, but an attitude of refusal on demand verging on dishonest disowning of the obligation under decree. ठीक है. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस लॉ को जरा कॉन्स्टिट्यूशनल कलर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप सेक्शन 51 को सुपरफिशियली पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि if the judgment debtor has some property and he still doesn't discharge his decretal debts, then he can be proceeded against. But ये by itself is not a sound position. You have to read these provisions in the constitutional light. Under Article 21, Supreme Court ने तो International Covenant on Civil and Political Rights भी refer किया था इस पे. Supreme Court said that a simple default to discharge is not enough. यहाँ पे element of bad faith होना चाहिए beyond mere indifference. There should be a deliberate refusal to pay your decretal debts when you have the means to do so.
It is not just a mere act of mere act of omission, but an attitude of refusal on demand, verging on dishonest disowning of the obligation that has been imposed by the decree. ठीक है? Supreme Court then continues and says, unless there be some other vice or mens rea apart from failure to foot the decree, international law frowns on holding the debtor's person in civil prison as hostage by the court. India is now a signatory to this covenant, and the constitution obligates the state to foster respect for international law and treaty obligations in dealing of the organized peoples with one another. Even so, until the municipal law is changed to accommodate the covenant, what binds the court is the former, not the latter. Supreme Court then said quantum affluence and current indigence without intervening dishonesty or bad faith in liquidating his liability can be consistent with Article 11 of the Covenant, because then no detention is permissible under Section 51 of CPC. Supreme Court continues and says high value of human dignity and worth of human person enshrined in Article 21, read with Article 14 and 19, obligates the state not to incarcerate except under law which is fair, just and reasonable in its procedural essence. इस पे फोकस करिएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा ये लाइन. To cast a person in prison because of his poverty and consequent inability to meet his contractual liability is appalling. To be poor is no crime, and to recover debts by the procedure of putting one in prison is flagrantly violative of Article 21, unless there is proof of minimal fairness of his willful failure to pay in spite of his sufficient means and absence of more terribly pressing claims on his means, such as medical bill to treat cancer or other grave illness. Unreasonable and unfairness in such a procedure is inferable from Article 11 of the Covenant. ये international law के covenant की बात कर रहा है on civil and political rights. But this is precisely the interpretation on the proviso to Section 51 of CPC, and the lethal blow of Article 21 cannot strike down the provision as interpreted. Supreme Court ने provision को struck down नहीं किया था, upheld किया था, लेकिन ये बोला था कि दिस प्रोविजन हैज़ टू बी सॉस्ड विद जस्टिस. जो एक्सप्रेशन उन्होंने यूज़ किया था कि वी हैव देयर बाय सॉस्ड द लॉ विद जस्टिस, वंडरफुल एक्सप्रेशन. अभी अभी आपने जो कैंसर और मेडिकल बिल्स की बात सुनी, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने, जब आप पूरा जजमेंट पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केरला हाई कोर्ट की जजमेंट को रेफ़र किया था. उसमें केरला हाई कोर्ट के जजमेंट में जो जजमेंट डेप्टर था वो क्या कहते हैं, उसको अपना कैंसर पेमेंट की वजह से काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता था अपने मेडिकल बिल्स पे, तो डिक्रीटल डेब्ट नहीं पे कर पाता था. तो वहाँ पे सिचुएशन ये है कि क्या ऐसे पर्सन को इनकार्सरेट कर देना चाहिए बिकॉज ही कैनॉट पे हिज डिक्रीटल डेब्ट? द आंसर इज नो. देयर हैज़ टू बी सम एलिमेंट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी while recovering such payments, and specifically in India where the laws are required to be just, fair and reasonable. Any law which is not just, fair and reasonable would stand challenge on the constitutional side and might not survive it. The law is not supposed to be Shylock from Merchant of Venice who craves his pound of flesh. अगर किसी ने Merchant of Venice पढ़ी हो तो वो जानता होगा कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर डेब्ट नहीं पे कर पाए देन आई विल हैव 1 pound ऑफ फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी. तो लॉ शाइलॉक की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए उसे, ठीक है. इट हैज़ टू बी यू नो consonant with the rules of justice, ठीक है. it has to be consonant with the rule of justice. तो मतलब यहाँ पे आपको ये पोजीशन ऑफ लॉ पता चलती है कि अगर कोई व्यक्ति, इसलिए मान लीजिए अपनी डिक्रीटल डेब्ट नहीं दे पाता बिकॉज लेट अस सपोज उसकी वाइफ के मेडिकल बिल्स में उसे खर्चा करना है या उसको खुद के मेडिकल बिल्स पे खर्चा करना है बिकॉज देयर इज़ अ सीरियस टर्मिनल इलनेस, ठीक है. मान लीजिए कि लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, कोई मेजर सर्जरी करवानी है, कैंसर ट्रीटमेंट करवाना है एक्सेट्रा, अपना या किसी फैमिली मेम्बर का, तो ये ज़्यादा प्रेसिंग नीड्स होंगी, है ना. ऐसे में आप दूसरा मोड ऑफ रिकवरी देखिए, पर ऐसे में उसे कन्फाइन मत करिए, डिटेन मत करिए, अरेस्ट मत करिए. In fact, an expression was also used in this judgment
that to be poor in this land of Daridra Narayan is no crime, and to recover debts by the procedure of putting one in prison is too flagrantly violative of Article 21 unless there is proof of minimal fairness of his willful failure to pay in spite of the sufficient means and absence of more terribly pressing claims on his means such as medical bills to treat cancer or other grave illnesses. ठीक है. So what can you gather from this judgment? There must be sufficient means, there must be an act of bad faith, there must be neglect and refusal by the judgment debtor to pay. Only when these situations are satisfied, then the remedy of arrest and detention of the judgment debtors can be had. ठीक है. और इसमें भी ये देख लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वहाँ पे और टेरिबली प्रेसिंग क्लेम्स मौजूद हैं, जैसा कि आपने अभी कैंसर और अदर ग्रेव इलनेसेस के बारे में जाना थ्रू दिस जजमेंट. तो इन सारी चीज़ों का आपका ध्यान रखना है. ठीक है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अवेयर रिगार्डिंग दी सिचुएशंस कि अपना जुडिशियल डिस्क्रेशन आप इन सिचुएशंस पे कैसे एक्सरसाइज करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर द लॉ हैज़ टू बी सॉर्स्ड विद जस्टिस. एनी लॉ दैट इज अनजस्ट विल नॉट सर्वाइव द जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. अब कॉन्स्टिट्यूशनल साइड में आपके पॉइंट बता दूं कि जुडिशरी इज नॉट ऑलवेज रेडी टू स्ट्राइक डाउन द लॉ. वो ऐसा इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करती है विच सेव्स द लॉ. तो अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन कर सकती है विच सेव्स द लॉ, then it will make sure that it makes that representation. It will either read down the law or it will interpret the law in such way that its constitutionality is upheld. लेकिन जब ये दोनों ही तरीके फेल कर जाते हैं तब जुडिशरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता बट टू स्ट्राइक डाउन द लॉ. ठीक है. तो जब तक वो सिचुएशन नहीं आती है तब तक कोर्ट बाकी के मीन्स यूज करता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन, रीडिंग डाउन द प्रोविजन एसेट्रा एसेट्रा. तो सेक्शन 51 का ये वाला पार्ट इसी वजह से बच गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट एन इंटरप्रिटेशन कैन बी पुट ऑन दिस सेक्शन जिससे लॉ को वैलिडिटली अपहेल्ड किया जा सकता है. तो क्या उन्होंने बोला? उन्होंने बोला कि अगर अरेस्ट और डिटेंशन की पावर एक्सरसाइज करनी है इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री तो रूल्स के साथ साथ इस बात पे भी गौर करना होगा कि फर्स्ट देयर हैज़ बीन एन एक्ट ऑफ बैड फेथ, sufficient means are present with the judgment debtor, there is no pressing needs with the judgment debtor and he neglects or refuses to pay his decretal debts. जब ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाती हैं only then the remedy of arrest and detention can be resorted to, otherwise not. ठीक है. मान लीजिए एक जेन्युइन आदमी है, वो गरीब है, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो उसको प्रिजन में डालने से क्या फ़ायदा होगा? अचानक से पैसा तो आने नहीं वाला उसके पास. ठीक है. फर्स्ट. दूसरा, मान लीजिए कि वो एक टर्मिनल इलनेस से ग्रसित है जो आपका जजमेंट डेप्टर है, वो अपनी बीमारी का इलाज करवा रहा है उस पैसे से. अगर आपने वो पैसा ले लिया तो वो मर जाएगा. यहाँ पे भी इन दोनों ही सिचुएशन में ये रेमेडी नहीं रिजॉर्ट हो सकती ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन. ठीक है. याद रखिएगा. एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब भी अरेस्ट और डिटेंशन ऑर्डर होता है तो एन रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस इज मैंडेटरी. इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. ठीक है. इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. यहाँ पे आपके पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि यू मे और मे नॉट रिकॉर्ड द रीजंस. यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर डिटेंशन. ठीक है. और लिमिट्स को भी लेके ध्यान में रखिएगा कि कितने पीरियड के लिए कन्फाइन किया जा सकता है, जैसे कि सेक्शन 58 में दिया हुआ है. अब सेक्शन 59 देख लीजिए, दैट इज रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस. वो बताता है एट एनी टाइम आफ्टर द वारंट ऑफ अरेस्ट ऑफ द जजमेंट डेप्टर हैज बीन इशूड द कोर्ट में कैंसिल इट ऑन द ग्राउंड ऑफ ए सीरियस इलनेस. तो ये सीरियस इलनेस का ग्राउंड पे जो कैंसल्ड होता है वारंट ऑफ अरेस्ट, ये कौन एक्सरसाइज करता है पावर? ये कोर्ट एक्सरसाइज करता है. सब रूल 2 सब सेक्शन 2 देखिए. वेयर अ जजमेंट डेप्टर हैज बीन अरेस्टेड द कोर्ट में रिलीज हिम if it is of the opinion that he is not in a fit state of health to be detained in civil prison. ये पावर भी कौन एक्सरसाइज करता है? कोर्ट एक्सरसाइज करता है कि भाई उसकी हेल्थ ऐसी नहीं कि उनको डिटेन किया जा सकता है तो उनको रिलीज कर दो. ठीक है. आपने कभी देखा होगा कि जैसे जब पॉलिटिशियन अरेस्ट हो जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर, किडनी एलिमेंट, सारी चीज़ें अचानक से निकलने लगती हैं. ठीक है. वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए होता है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना चाहिए ये सारे ग्राउंड्स क्रिमिनल साइड पे नहीं काम आते हैं. ठीक है. अनलेस डिजीज़ बड़ा सीवियर है, जैसे डायलिसिस. ठीक है. डायलिसिस नहीं हुआ तो जो पेशेंट है वो मर जाएगा.
तो सिवियर इलनेस के लिए ही क्या कहते हैं ऐसा कर सकते हैं. सिविल साइड में थोड़ा लिबरल होता है कोर्ट, ठीक है, सिविल साइड पे थोड़ा लिबरल होता है. फिर वे द जजमेंट डेप्टर हैज बीन कमिटेड टू सिविल प्रिजन ही में बी रिलीज देयर फ्रॉम बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अब देखिए सबसेक्शन 3 में ऑफ सेक्शन 59 आप स्टेट गवर्नमेंट रिलीज कर दिए ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिसीज. मान लीजिए जेल में प्लेग फैल गया है तो ऐसे में सिविल प्रिजन्स में रिलीज किया जा सकता है. अब बाय द कमिटिंग कोर्ट और एनी कोर्ट टू विच सच कोर्ट इज सबऑर्डिनेट ऑन द ग्राउंड इन सफरिंग ऑफ सीरियस इलनेस. अब जो क्लॉज बी है यहाँ पे भी कोर्ट रिलीज कर सकता है ऑन द ग्राउंड दैट द पेशेंट इज सफरिंग दैट द जजमेंट डेप्टर इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस. ठीक है, तो सीरियस इलनेस का ग्राउंड मेजरली आपको मिलता है कोर्ट के कंटेक्स्ट में. ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में कौन सा टर्म ऑकर होता है? इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिसीज, महामारी फैल गई है, प्लेग फैल गया है. तो ये सारे ग्राउंड्स पे रिलीज ऑर्डर हो सकता है. अब मान लीजिए कोविड फैल जाता सिविल प्रिजन्स में, रिलीज ऑर्डर हो सकता है. फिर अब आते हैं सब सेक्शन 4 पे ऑफ सेक्शन 59. जजमेंट आफ्टर रिलीज अंडर दिस सेक्शन में बी रीअरेस्टेड but the period of its detention in civil prison shall not in the aggregate exceed that prescribed by section 58. मतलब aggregate period section 58 को exceed नहीं करेगा. section 58 क्या कहता है? अगर 5,000 से ऊपर के अमाउंट है डिक्रेटल डेप्ट का तो 3 मंथ से ज़्यादा का कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता. अगर 2,000 रुपये के ऊपर का डिक्रेटल डेप्ट है तो कन्फाइनमेंट कितने टाइम के लिए हो सकता है? 6 वीक्स, प्रोवाइडेड अमाउंट 2,000 के ऊपर का है और 5,000 से कम है. ठीक है, तो 6 वीक्स ये मार्क कर लीजिएगा. ये पीरियड सेक्शन 58 में पूछा जाता है, ये प्रीलिम्स में भी मेंस में भी. अब एक चीज़ याद रखिए, कोर्ट के को ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बार में सारा 3 का 3 महीने कन्फाइन करवा दे. वो चाहे तो 10 दिन के लिए कन्फाइन करे या 14 दिन के लिए कन्फाइन करे, फिर कहे रिलीज़ कर देते हैं. ठीक है, फिर वो हरकत नहीं करता तो उसे फिर से अरेस्ट करके कन्फाइन किया जा सकता है अगर वो फिर नेगलेक्ट और रिफ्यूज़ करता है. तो बेसिकली कोर्ट के पास बहुत ऑप्शन मौजूद हैं. ये नहीं कि मैकेनिकली 3-5 हज़ार के ऊपर के डिक्रेटल डेप्ट है जो आज के टाइम में होगी ही होगी, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं कि कोर्ट एक ही बार में 3 महीने के लिए कन्फाइन कर दे. कोर्ट चाहे तो एक बार में 1 महीना या 15 दिन, 10 दिन, हफ्ता वर, दैट इज अप टू द कोर्ट. बट अपर लिमिट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. अपर लिमिट एक बार फिक्स हो गई तो इसको बियॉन्ड नहीं जाया जा सकता. ठीक है, आप इनहेरेंट पावर भी नहीं एक्सरसाइज कर सकते to exceed those upper limits. याद रखिएगा, inherent power are not exercised in derogation of the statute. They are meant to complement the statute. They are meant to supplement the statute. They are not meant to supplant the statute. ठीक है, supplement और supplant में अंतर होता है. So inherent powers are not meant to supplant the statute. They are meant to supplement the statute. तो इन situations में आप inherent power भी नहीं exercise कर सकते. ठीक है, तो ये भी हो गया. सो अरेस्ट एंड डिटेंशन तो हो गया प्राइमरली. अब कल हम लोग अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट. ठीक है, और उसके बाद हम लोग सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स ये डील करेंगे, फिर रेस्टिट्यूशन और इनहेरेंट पावर, उसके बाद आपका सीपीसी ओवर. ठीक है, तो आज जितना भी बताया उस पर ध्यान दीजिएगा. बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ रूल्स पे फोकस करना होता है, कुछ रूल्स पे फोकस नहीं करना होता है. जैसे अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की कल बात करेंगे तो प्राइमरली कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है? 60 इंपॉर्टेंट है, 64 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और फिर बेसिक बेयर अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है. और ये सारा चीज़ बेयर एक्ट लेवल का है. 1-2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको जानने होंगे, जो आई थिंक 1 मिनट में ही बताए जा सकते हैं, 1 मिनट में ही बता देंगे. बाकी आपको ये जानना होगा कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर रूल 41 में जजमेंट डेप्टर को एग्जामिन किया जाता है कि उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, एसेट्रा एसेट्रा. फिर रूल 42 में अगर डिक्रीज फॉर रेंट और मीन प्रॉफिट्स या किसी और मैटर के लिए जहाँ पे अमाउंट ड्यू को असर्टेन करना होता है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है. रूल 43 अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करेगा. रूल 43 है कस्टडी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करेगा. ऑर्डर 21 की ये सारी बात हो रही है. रूल 44 अटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से डील करेगा. ठीक है, रूल 44 और 45 दोनों ही करेगा उस बात से डील. फिर रूल 46 अटैचमेंट ऑफ डेप्ट शेयर एंड अदर प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट इन पोजेशन ऑफ जजमेंट डेप्टर, उससे डील करेगा. ठीक है, गार्निशी ऑर्डर थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा. गार्निशी ऑर्डर आपको बताना पड़ेगा कि क्या होता है. उसमें बस कंसेप्ट समझना होता है कि गार्निशी होता क्या है. गार्निशी इज़ द जजमेंट डेप्टर्स डेप्टर.
जजमेंट डेप्टर्स, डेप्टर वो गार्निश ही होता है। फिर आपका जो रूल 48 है ऑर्डर 21 का, दैट इज़ अटैचमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट और रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट की सैलरी अटैच हो सकती है उसके अंदर। रूल 48 में रूल 48A में सैलरी और अलाउंस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ अटैच हो सकती है। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी रूल 49 में अटैच हो सकती है। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट द फर्म आप कैसे करेंगे वो रूल 50 में बताया गया है। अटैचमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रूल 51 में है। रूल 52 में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन कस्टडी ऑफ पब्लिक ऑफिसर का है। अटैचमेंट ऑफ डिक्रीज रूल 53 में है। अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रूल 54 में है। रिमूवल ऑफ अटैचमेंट आफ्टर सेटिस्फैक्शन और डिक्री रूल 55 में है। ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉइन और करेंसी नोट्स रूल 56 में है। डिटर्मिनेशन ऑफ द इश्यूज ऑफ अटैचमेंट रूल 57 में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये आपको बस मेन आपको हेडिंग का ध्यान रखना है और आपको जानना है कि इसमें क्या हो सकता है। दैट यू कैन रीड योर सेल्फ, उसमें ऐसे कोई चीज़ नहीं है। एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस में एलैबोरेशन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो नेचर ऑफ प्रोसीडिंग है ये किस नेचर का है। क्या ये समैरली डिटरमाइन होती हैं या फाइनली डिटरमाइन होती हैं? तो आंसर अभी ले लीजिए, फाइनली डिटरमाइन होती हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोसीडिंग होती हैं एग्जीक्यूशन में वो समैरली डिटरमाइन होती हैं, मोस्टली आप कह सकते हैं, सब्सटेंशियली आप कह सकते हैं। लेकिन जो एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स ऑफ अटैचमेंट है वो फाइनली डिटरमाइन होता है, और उसमें जो भी एडजुडिकेशन होता है ऑर्डर 21 के रूल 58 में वो डीम्ड डिक्री होता है। इट इज़ अ डीम्ड डिक्री। सो ये वाले इश्यूज हम लोग डील करेंगे कल। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी ये हो जाए। प्रीसेप्ट्स आपको बताना होगा। प्रीसेप्ट्स का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रीसेप्ट होता क्या है। ठीक है, सेक्शन 46 इज प्रीसेप्ट्स, तो आपको बेयर एक्ट लेवल पे वो आंसर करना होगा, लेकिन उसके साथ आपको उसका ऑब्जेक्ट भी बताना होगा कि व्हाट एक्चुअली प्रीसेप्ट इज। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं कल डिस्कस करूंगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई वुड सी यू टुमारो।